हेलो किड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का आंसर 13 से करेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डन फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 12. तो आज हम लोग क्वेश्चन 13 को सॉल्व करेंगे. सो आंसर 13 विल बी, इट इज गिवन 4y plus 2 by 5 is equal to 7 plus 5y by 13. For all the notes, solutions of your exercises, any subject you will get on our website free of cost. Okay, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. और जो नोट्स आपको इनर नोट्स चाहिए, इनर क्वेश्चंस चाहिए, दैट यू हैव टू बाय. वो आपको बाय करना पड़ेगा बिकॉज उसमें बहुत ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे टू गुड मार्क्स. ओके, टू गेट गुड मार्क्स. तो इसीलिए आप उसको बाय कर लीजिएगा फ्रॉम अ वेबसाइट जो हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा. वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू टू अ वेबसाइट. सो अभी हम लोग इसका जो मेन इंस्ट्रक्शन है जो हमने यहाँ पर दिखा, फर्स्ट आपको क्या है कि कॉमन डिनोमिनेटर आपको ओपन करना पड़ेगा. ब्रैकेट पहले आपको ओपन करना है. सबसे पहले वी विल वर्क ऑन दिस. ओके, सो इट विल बी 4y प्लस 8 बाई 5. इट विल बी, यहाँ पर हमारा 1 है. एज यू नो व्हेन वी डू एचसीएफ और एलसीएम तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ का डिनोमिनेटर विल बी 13 एंड यू विल गेट 13 into 7 will be 91 plus 5y. Okay, now we will do the cross multiplication. जैसे हम लोग ने लास्ट सम्स में हम लोग ने सॉल्व किया है. we will take 13 here, 5 here. it will call a cross multiplication. we are uploading one by one कि आपके लिए वो easy रहे उसको सॉल्व करना. सो हम लोग क्विकली अब इसको करते हैं बिकॉज फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 मैंने बहुत डीपली आप लोग को समझाया है स्टेप बाय स्टेप. सो फ्रॉम नाउ ऑन आई एम नॉट डूइंग दैट स्टेप बाय स्टेप. आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई विल गो बाय वेरी फास्ट. नाउ 13 into 4 will be 52y प्लस 13 into 8 will be 104. ये सब कैलकुलेशन ट्रिक्स आप लोग को आनी चाहिए. आप हमारा वैदिक मैथ्स कोर्स भी हम लोग का अपलोड है ऑन यूट्यूब ऑल्सो. बेसिक इज फ्री बट द एडवांस इन मास्टर लेवल इज यू हैव टू बाय. तो यू कैन बाय इट फ्रॉम अ वेबसाइट ऑल्सो एंड यू कैन सी ए बेसिक फ्री कोर्स फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल. सो 5 into 91 is 455 plus 25y. ओके, मेरा मकसद होता है बच्चों को अच्छी तरह से समझाना. अगर वो लोग समझेंगे नहीं तो आप उसको कर नहीं पाओगे. आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो. सो मेरा यही मोटिव रहता है कि अपने स्टूडेंट्स को ईजिली समझा पाऊँ कि वो क्या कर रहे हैं. आई हैव ब्रिंग द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल ऑन वन साइड. Okay, so just we quickly calculate it. It will be 27y. This will be 351. So just calculating it now. Y is equal to 351 by 27. Your answer will be 30. This is your answer. Okay, now we quickly move on to answer 14. Let me know. Okay, so it is given a plus 5 6 minus a plus 1 by 9 is equal to a plus 3 by 4. So what we will do, we will do the common denominator, means we will work on this first. We will simplify this. So we will get the denominator 18. How you get? By getting the LCM of 6 and 9. Okay, I am not explaining that thing here because I think everyone knows it. In your senior classes, class 6, 7, you have learned LCM and LCM, so it is not worthy to explain it here. So in 6 table, we get 18 in 3 times. So it will be 3a plus 5
Always do the things step by step. Don't miss the steps. I am mentioning it in every sums because steps are very necessary in maths. आपको points step by steps लिखने ज़रूरी है. Now we are doing the parenthesis. Minus 2a plus minus minus 2. I have explained the signs here in my previous video. You can see over there what will be the, I am writing it here also. Multiply plus, if you are multiplying minus sign with plus sign, your answer sign will be minus. If you are multiplying minus into minus, your answer will be plus. Okay, so this we don't do anything. Now 3a minus 2a will be a, plus 15 minus 2 will be plus 13. Okay, so we will go it very fast now. We are just doing the cross multiplication. I am doing the arrows so you can understand it. Acha, you will get the PDF of this also. I will upload it on my website and do the link in my description. So you can see it on the PDF form also when you are doing your homeworks. Just cross multiplication, then opening parenthesis I am doing. It will be 52, 18a, 18 into 3 will be 54. Now variable on one side and the constant on the other side. Okay, hope you are understanding the steps. 18a minus 4a will be minus 14a, and 54 minus 52 will be 2. So a is equal to 12 by 14. So this will be the answer. A is equal to minus 1 by 7. Just follow the steps one by one and you will get the thing. The signs are very important. मैं हर क्वेश्चन में, हर आंसर में आप लोग को बता रही हूँ. It is very important. Okay, we quickly jump on to answer 15. It is given 2x minus 13 by 5 minus x minus 3 by 11. Okay, if you want any suggestion, if any suggestion कि किस तरह से वीडियो और आपको easy लगे या आप किस तरह से चाहते हैं मैं और easily आपको वीडियो बनाऊँ कि दूँ आपको explain करूँ, please comment, please WhatsApp, please message on Facebook and Instagram profile. Okay, so आपको उसी तरह से I will try कि मैं जितना easy way में हूँ आप लोग को समझा सकूँ. So now in the first step we will do or bring all the denominator one on one side and we will leave the number on one side. So it will be 11. When we bring this, it will become minus x minus 9 5 and it will be 1. So we will take the LCM. 11, 2x minus 13. This will be 5, x minus 3. This will be 11, x minus 9. Okay, just now open the parenthesis. It will become 22x. 11 into 2, 22x. Then 11 into 13 will be 143. Minus 5x, minus will become plus 15. Then minus 11x, minus become plus 99. Denominator is 55 and 5. Okay, now we just simplify the thing. 22 minus 5x minus 11x. I
आई एम डूइंग दिस स्टेप्स टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी कि आप समझो कि मैंने क्या किया है. अदरवाइज इन मोस्ट वीडियोज यू जस्ट जम्प टू द आंसर कैलकुलेट करके. 22 minus 16 will be 6x minus 29 5. Cross multiply. 6x minus 29 is equal to 5 into 55. 6x minus 29 is equal to, okay, I have written 5 now. That is a mistake, sorry. So it will become 55 only. So 6x is equal to 55 plus 29. 6x is equal to 84. X is equal to 84 by 6. Your answer will be 14. This is your answer. Okay, coming to answer 16. It is given 6x minus 5. 7x minus 8 is equal to 12. 4 minus x plus 1. Okay, we just open the bracket and then simplify. इसमें और कुछ करना नहीं है, just open the bracket and simplify it. Okay, 6x is 36, x minus 30, 35x plus 40, 48 minus 12x plus 1. Now what we do? We bring the constant on one side and the variable on the other side. So 36x minus 35x, 48 plus 1 minus 40 plus 30. Okay, now just calculate it. You don't have to do anything else, just calculate it. Plus minus you have to do simple. X is equal to 3. This is your answer. X minus 5, x plus 3 is equal to x minus 7, x plus 4. Okay, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट बाइनॉमिनल है, ओके, द फर्स्ट बाइनॉमिनल को हम लोग सेकेंड बाइनॉमिनल से ईच नंबर से हम लोग उसको ईच टर्म से उसको मल्टीप्लाई करेंगे. x with x with 3, 5 with x, 5 with 3. Hope you are understanding it. इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो, बट आई होप कि आप इस तरह से इजली समझ पाओगे. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम x स्क्वायर. x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 3x. ठीक है. देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, साइन विल बी माइनस बिकॉज माइनस प्लस विल बी माइनस. 5 into x will be 5x. Then 5 into 3 plus minus sign will be minus, it will be 15. Easy. आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है. It is very easy. Just फर्स्ट नंबर से सेकंड को मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर से सेकंड को मल्टीप्लाई. क्लियर. सेम वे में हम यहाँ करेंगे x इंटू एक्स, x इंटू 4, 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 4. होप इट इज क्लियर. x स्क्वायर प्लस 4x minus 7 into x plus minus minus 7 4 28. Clear. Now what we will do, all the constant term on one side and all the variable on the other side. So it will be x square plus minus minus 2x minus 15. One more step to simplify it more. So 5x minus 3x will be minus 2x. माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि द लार्जर नंबर, द ग्रेटर नंबर हैव द माइनस साइन. अगर माइनस साइन 3 का होता तो इसमें प्लस आता. ओके,
सो यहाँ पर भी हम लोग जल्दी से कर ले रहे हैं. इट विल बी 3x minus 28. नाउ वेरिएबल ऑन वन साइड एंड द कांस्टेंट ऑन अदर साइड. ठीक है, तो अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल कट जाएगा बिकॉज वहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं. 3x माइनस 2x विल बी x. अच्छा, जब भी x लिखा हुआ है या x स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब उसको काउंट किया जाएगा 1 में. x या x स्क्वायर या a स्क्वायर या b स्क्वायर मतलब उसका जो वैल्यू है वो 1 है. ओके, तो 3x minus 2x will be x, positive sign because the greater number has the positive sign. Here will be minus 13 because the greater number has the negative sign. Understanding? ग्रेटर नंबर का जो साइन होगा, जो लार्जर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसका साइन हमारे आंसर में लगेगा. ओके, सो दिस इज योर आंसर. नाउ कमिंग टू आंसर 18. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो उसको समझिएगा. x माइनस 5 2 माइनस एक्स प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, आप लोग ने जब भी हम लोग अलजेब्रा ऑब्वियसली जब शुरू करते हैं तो एक इक्वेशंस होते हैं जो फॉर्मूला होते हैं हमारे, मतलब a माइनस बी अगर हैगा तो इसका इक्वेशन बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, और अगर a प्लस बी स्क्वायर है तो इसका इक्वेशन बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यही प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे और इसको सॉल्व आउट करेंगे. यहाँ पर देखिए a प्लस a माइनस बी भी है और a प्लस बी भी है. सॉरी, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, यहाँ 2 है. ठीक है, समझ आया? तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके हम उसको प्रॉपर्टी को वहाँ डालेंगे, देन हम उसको सॉल्व करेंगे. तो कैसे होगा, हमारा क्या है, x माइनस 5 है तो एक्स स्क्वायर इसको हमको 2 बार लिखना होगा. ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये आंसर कैसे आया. इसका ये आंसर कैसे आया. सो जो हमने यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में करा था x से इसको, x से x को, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 25. तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25. समझ आ गया कैसे आया. सो ये वाला जो है ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आपको दिखाना नहीं है आपके सॉल्विंग सम्स में. ठीक है, ये मैंने किया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू, एक्सप्लेन. ठीक है, ये वाला स्टेप हम लोग नहीं दिखाएंगे, ये स्टेप दिखाएंगे. फिर हमारा नेक्स्ट में क्या था, ये था. तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, मतलब सारे साइंस हमारे पॉजिटिव आएंगे. तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये ब्रैकेट में देंगे, ये भी ब्रैकेट में लाएंगे क्योंकि हमारा बीच में भी माइनस साइन है, तो उसको हम बाद में ओपन करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2. अभी वी ओपन द ब्रैकेट. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25. इधर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, बट इस तरफ का साइन चेंज होगा बिकॉज हमारे पास माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर. तो इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया जैसे हमने प्रीवियस सम्स में किया था. 10x माइनस 4x विल बिकम माइनस 14x. ठीक है, 25 माइनस 4 विल बिकम 21. अच्छा, द साइन विल बी प्लस बिकॉज 25 ग्रेटर है 4 से, इसी के लिए उसका साइन प्लस होगा.
Now constant on one side, variable on the other side. साइन लगाना मत भूलिएगा, अगर नेगेटिव साइन है तो वो आपको शो करना है आपके स्टेप्स में, ओके। अगर आपका साइन नेगेटिव है तो उसको शो करिएगा आपके स्टेप्स में। तो इट विल बिकम 23 हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, -23। आपको क्या बोला था मैंने, जब भी हमारा माइनस और माइनस को हम लोग प्लस करेंगे, आंसर में हम लोग माइनस साइन ही दिखाएंगे, ठीक है। तो इट विल बी 23 by -14. So your answer will be, when you divide 23 by 14, you will get 9 by 14. Okay, your quotient and your remainder will be 9 by 14 and your number will be 1. माइनस साइन क्यों नहीं आया, बिकॉज माइनस साइन हमारा यहाँ पर कट गया, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ओके। तो हम लोग आंसर 19 कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा x-1 इंटू x + 6 x-2 x-3 इज इक्वल टू 3। सो हमने जो आंसर 17 में किया था, सेम वे में हम लोग यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट बायनोमिनल को सेकंड के ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x इंटू एक्स, x इंटू 6। तो हम यहाँ करते जा रहे हैं फटाफट। -1x, 1 मैंने लिखा है, बट इन मैथमेटिक 1 नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ x लिखते हैं। टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने लिखा है, तो आप नहीं भी लिखोगे तो वो करेक्ट होगा। सो x इंटू एक्स विल बी x², x इंटू 6 विल बी 6x, 1 इंटू एक्स विल बी 1x। 1 मैंने लिखा है टू मेक यू अंडरस्टैंड। हम नहीं भी लिख सकते बिकॉज 1 नहीं लिखते हैं, x ही लिखते हैं, जो मैंने अभी आपको आंसर 18 में समझाया था, सेम। सो इट विल बी 6 इंटू 1 विल बी, सेम वे में हम यहाँ करेंगे x² -2x माइनस इंटू माइनस विल बी +6 इज इक्वल टू 3। Now just simplify it now. Okay, 5x plus 5x, it will be 10x, and it will become -12 is equal to 3. So we are jumping to answer 20. It is given is equal to 2. अगर हम LCM निकालते हैं और उसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो LCM इसका क्या होगा, ठीक है। ऊपर कैसे लिखेंगे, अब x + 6 में x + 5 नहीं है, तो x + 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 3x से, x को मल्टीप्लाई करना होगा इससे, इज इक्वल टू 2। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट विल बिकम 3x² + 15x - x² प्लस माइनस 6x। नीचे को भी सॉल्व कर लेंगे, इट विल बिकम x² प्लस 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 2। नाउ वी टेक दिस होल थिंग टुगेदर, it will become 3x minus x will be 2x², 15x minus 6 will be 9 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या होगा हमारा, x² प्लस 11x प्लस 30, ठीक है। फटाफट बस अब सिंप्लीफाई करते हुए चले जाना है। 60 constant on one side and on the variable on the other side. 2x will be getting minus 13x. Why minus? Because the larger number has the greater sign, minus sign.
x is equal to 60 by 13, x is equal to so your answer will be 311 by 13. आप ये वाला भी छोड़ सकते हो या आप इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है।